क्वेश्चन नंबर 1 आ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਵਿਆਕਰਨ। हाँ जी, किसी बोली ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ शुद्ध रूप ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਬਦਬੋਧ, ਅਰਥਬੋਧ, ਵਾਕਬੋਧ ਅਤੇ ਧੁਨੀਬੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਆ ਧੁਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸਾਰਥਕ ਆ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਵਾਕਬੋਧ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਆ ਵਾਕਬੋਧ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਨ 35। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜਿੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 6 ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 41। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਵੀਂ ਧੁਨੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਵਰਨ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਧੁਨੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸਵਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸਵਰ। ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਵਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸਵਰ 'ਚ ਧੁਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਸਵਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਵੋਗੇ।
ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 10। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ 10। 10 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? ਦੇਖੋ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਆ, ਤੇ 10 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? 10 ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? ਆੜਾ, ਆੜੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਵਿਹਾਰੀ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ, ਊੜੇ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਈੜੀ ਲਾਵਾਂ, ਆੜੇ ਦਲਾਵਾਂ, ਊੜਾ ਤੇ ਆੜੇ ਹੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 10 ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 3 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਵਿਅੰਜਨ। ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨੁਨਾਸ਼ਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਨਾਸ਼ਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਨਾਸ਼ਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਮੰਮਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੁਨਾਸ਼ਕੀ ਵਿਅੰਜਨ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਈਆਂ, ਨਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਮਾ। 5 ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਯੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਸਲ ਆ ਫੱਫੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਯੋਕੀ ਆੜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਣੇ ਤੇ ਡਾੜਾ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਈਆਂ, ਨਈਆਂ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਡਾੜਾ ਤੇ ਨਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਵਾ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 3। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਮਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮੁਕਤਾ ਵਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਲਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਧਕ ਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਿਹਾਰੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਿਹਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਲ, ਕਮਲ, ਕਣਕ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ CNG ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, CNG ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ CNG ਦੀ? ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸਡ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਈਂਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ LPG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ CNG ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਆ ਪੌਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ।
ठीक है। इसका जिहड़ा स्रोत आ वो है पौधे, क्योंकि पौधों नूं दुबारा उगा के उन्होंने यूज कर सकते हैं असीं एज एनर्जी के तौर पर। ये तुसीं याद रखना। हाँ जी, हुण जो असीं क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 तो वैसे तो मैं कोशिश की थी जो भी एक्सट्रा फैक्ट आ उन्होंने मैं क्वेश्चन बना के ही PDF दे विच ऐड करदा। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि जो भी एक्सट्रा फैक्ट आ उन्होंने मैं बिल्कुल सीरीयल वाइज PDF दे विच ऐड करदी जानी आ, ठीक है। पर एक थोड़े क्वेश्चन इस तरह के जिन्हां दे नाल एक्सट्रा फैक्ट दसने पैने, तुहानूं समझाउणा पैना कि किहड़ी चीज़ की हुंदी आ। इस दे लई थोड़ा जिहा इहदे नाल दस्से जाणगे। तो सब तो पहला असीं स्टार्ट करते हैं हेठलियां विचों किहड़ा वरखा लई जरूरी रोल अदा करता है। हाँ जी, वरखा दे लई जरूरी रोल अदा करता है इवैपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जानी कि बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो हुण इवैपोरेशन की हुंदा वा, जदों कोई लिक्विड किसी बॉइलिंग पॉइंट ते जाके किसी टैंपरेचर ते भाप प्रोड्यूस होण लग जाती है लिक्विड दे विच, ठीक है, उसनूं बोलदे आ वैपोरेशन, इवैपोरेशन। जदों वो उपर जाके किसी कोल्ड सरफेस नाल कंडक्ट करन लग जाती है तो ओहदा कंडेंसेशन हो जाती है, जानी कि उसके ड्रॉप्स दे विच कन्वर्ट हो जाती है ते भाफ। इहदा मतलब की है कि उसनूं असीं जिहड़ी किसी पॉइंट ते जाके ड्रॉप्स दे विच कन्वर्ट हुंदी है उसनूं असीं बोलदे आ कंडेंसेशन। ये तुसीं याद रखना, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, धरती गर्मियां विच सूरज दे डैश हुंदी है। हाँ जी, धरती गर्मियां दे विच सूरज दे दूर होंगी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका नेड़े आंसर लगा के आउणगे, बिल्कुल गलत आ। वो बोल देंगे हैं कि धरती नेड़े होंगी है इस करके गर्मी ज़्यादा होंगी है, बिल्कुल गलत आ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जिहड़ा दूर का डिफरेंस हुंदा वा बहुत घट हुंदा वा ते ठंड दे विच नज़दीक आ जाती है, गर्मियां विच फिर दूर हो जाती है। जिहड़ा टैंपरेचर आ ये बदलता रहिंदा वा, इहदे करके रुत्तां बदलदियां रहिंदियां ने ते ये टैंपरेचर 23.5% प्लैनेट इल्ट हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, जदों पानी के गिलास में खंड घोल दी जाए तो पानी का लैवल की हुंदा है। हाँ जी, पानी के खलास दे विच जदों असीं खंड घोलते हैं तो पानी का लैवल रिमेन्स द सेम, नो चेंज, उस दे विच कोई चेंज नहीं होंदा, वो सेम ही रहिंदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जिहड़े भी डिजोल्वड सबसटांस हुंदे आ, ठीक है, वो पानी दे विच डिजोल्व तो हो जाते हैं, उसके लेवल नहीं चेंज होंदा, क्योंकि उसकी जिहड़ी संघनता वा वो डिस्कोसिटी वध जाती है, पर लेवल ते कोई भी इफैक्ट नहीं पैंदा, ठीक है, तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, डेट्राइट्स फूड चैन की हुंदी है, जां सॉरी शुरू हुंदी है। हाँ जी, कित्थों शुरू हुंदी है? ग्रीन प्लांट्स तो शुरू हुंदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिहड़े ग्रीन प्लांट्स तो कोई जीव जंतु जिवें फूंगी वगैरह हो जाती है उन्हां तो बनती है, अगे चैन डायरैक्ट चलती रहती है, ठीक है। तो कित्थों शुरू होंदी है? डेट्राइट्स फूड तो। डेट्राइट्स फूड की हुंदे? डेट्राइट्स की हुंदा? एक प्राइमरी सोर्स हुंदा एनर्जी का, जिहड़ा किसी डेट जिहड़ा किसी डेट ऑर्गेनिक मैटर तो बनिया हुंदा वा। डेट ऑर्गेनिक मैटर की हुंदा? जिवें पौधों के पत्ते, पौधों के पार्ट्स हो गए, कोई डेड बॉडीज हो गई, जीव जंतु जिवें जीव जंतुओं दी डेड बॉडीज हो गई, उन्होंने डेट्राइट्स बोलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी, एक भोजन लड़ी विच मनुख कित्थे स्थित हैं? हाँ जी, एक भोजन लड़ी दे विच मनुख कित्थे लाइज करते हैं? प्राइमरी अते सैकेंडरी कंज्यूमर दे विच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राइमरी किहड़े हुंदे आ? प्राइमरी जिहड़े शाकाहारी हुंदे आ, सैकेंडरी जिहड़े किसी होर फूड ते डिपेंड करते हैं, जिवें मांसाहारी हो गए, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हरी क्रांति ना किस फसल नाल संबंधित है? हाँ जी, हरी क्रांति किहड़ी फसल दे नाल संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावल अते कणक दे नाल संबंधित है हरी क्रांति, ठीक है। कि भारत विच हरी क्रांति नूं किस दुआरा ते कदों आरंभ किया गया सी? भारत विच हरी क्रांति नूं अमरीकी खेतीबाड़ी विग्यानी नॉर्मस बोरलॉग द्वारा 1963 दे विच स्थापित किया गया सी, ठीक है, तुसीं याद रखना। ते इस तो इलावा तुहानूं क्वेश्चन यह आ सकदा कि हरी क्रांति दे पिता वजों किस नूं जाणिया जांदा है? तां हरी क्रांति दे पिता दे वजों नॉर्मन बोरलॉग नूं जाणिया जांदा है। ते तुहानूं क्वेश्चन ये भी आ सकदा कि पंजाब विच हरी क्रांति का पिता कौन आ? पंजाब दे विच हरी क्रांति का पिता है डॉक्टर MS रंधावा, ये तुसीं याद रखना, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं, पंजाब की कितनी आबादी खेतीबाड़ी सैक्टर विच काम कर रही है? हाँ जी, पंजाब की कितनी आबादी है जिहड़ी खेतीबाड़ी सैक्टर दे विच काम कर रही है? लगभग 25% आबादी खेतीबाड़ी सैक्टर दे विच काम कर रही है। नैक्सट क्वेश्चन, किस किस्म की खेती पंजाब विच कीती जांदी है? हाँ जी, पंजाब दे विच तीबर खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮਾਲਵਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਭੌਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਪੰਜਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 6.12%। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਿਊਮਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਯੋਰਜ ਰਸਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੋਰਜ ਰਸਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਰਜ ਰਸੇਲ ਵਾਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪਿਊਮਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰਜ ਰਸੇਲ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੇ ਰੇਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਅਮਰੀਕਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ, ਐਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ IIC ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਦੇਵੀ ਹੌਂਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਪ੍ਰਿਯਮ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ HIV ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, HIV ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆ ਬਣੀ ਆ USA ਦੀ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ HVI ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 2022 ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਰ SS ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਐਨ ਵੀਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਐਨ ਵੀਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਇੰਫਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਲਾਗ ਨੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਐਨ ਵੀਰਨ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ, 13ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2022 ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ?
हाँ जी 13वां विश्व पैरा एथलैटिक्स ग्रां प्री 2022 कित्थे होया दुबई दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। UAE दे विच आ दुबई ते 13वां विश्व पैरा एथलैटिक्स ग्रां प्री 2022 दुबई दे विच होया। नैक्सट क्वेश्चन पाक स्ट्रेट पार करन वाली सब तो छोटी उम्र की महिला तैराक कौन बनी। हाँ जी पाक स्ट्रेट आ जिहड़ी पार करन वाली सब तो छोटी उम्र की पहली महिला तैराक कौन बनी आ GR राय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 13 साल 10 महीनों की सी जदों इन्हां ने पाक स्ट्रेट पार किया। ठीक है इस गल का तुसीं ध्यान रखना। इन्हां ने 29 किलोमीटर मात्र 13 घंटे 10 मिनट दे विच तैर के पार किया वा। नैक्सट क्वेश्चन साबका CDS जनरल हाँ जी साबका CDS जनरल बिपिन रावत नूं मरण उपरंत किहड़ा पुरस्कार दिता गया। हाँ जी जिवें कि तुहानूं पता है साडे पहले साबका CDS सी जनरल बिपिन रावत ते इन्हां दी दिसंबर 2021 दे विच एक हैलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण डैथ हो गई सी ते इन्हां दे बाद इन्हां नूं मरण उपरंत एक पुरस्कार दिता गया उहदा नाम आ पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन्हां नूं जिहड़ा सन्मान इन्हां दीयां बेटियां नूं प्रदान किया गया वा। ठीक है ये तुसीं याद रखना इन्हां दा सन्मान इन्हां दीयां बेटियां ने प्राप्त किया। मंत्री परिषद के मैंबर राष्ट्रपति द्वारा मुअत्तल किए जाते हैं किस दी सिफारिश ते। हाँ जी मंत्री परिषद के मैंबर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह ते मुअत्तल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन जदों किसी मंत्री विरोध अविश्वास का मता पास हुंदा है तो इन्हां दे विचों की सही होवेगा कथन जो अगे इसनूं पूरा करेगा। हाँ जी जदों किसी मंत्री विरोध अविश्वास का मता पास हुंदा है तो सारी मंत्री परिषद नूं ही त्याग पत्र देना पैंदा है। ये तुसीं याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन विश्व विच प्रचलित कुल किन्ने धर्म प्रमुख हैं। हाँ जी विश्व दे विच प्रचलित कुल किन्ने धर्म प्रमुख मन्ने गए आ 8। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन दलित शब्द का अर्थ हुंदा है दलित समुदाय का मुखिया किसनूं मन्निया जाता है। हाँ जी दलित समुदाय का मुखिया किसनूं मन्निया जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नूं मन्निया जाता है। नैक्सट दलित शब्द का की अर्थ हुंदा। हाँ जी दलित शब्द का अर्थ हुंदा टुटिया होया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है टुटिया होया। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी मंत्री परिषद सांझे तौर पर सांसद प्रति जिम्मेवार है स्वतंत्र मंत्री किस प्रति जिम्मेवार हैं। हाँ जी जिवें मंत्री परिषद आ वो सांझे तौर पर संसद प्रति जिम्मेवार आ तो स्वतंत्र मंत्री किस प्रति जिम्मेवार होंगे इत्थे असीं किस जां डैश डैश लगा सकते हो। ठीक है तो राष्ट्रपति प्रति जिम्मेवार होंगे है। ठीक है मंत्री परिषद सांझे तौर पर संसद प्रति जिम्मेवार आ तो स्वतंत्र मंत्री राष्ट्रपति प्रति जिम्मेवार आ। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी प्रधानमंत्री किस दा मुखी हुंदा है। हाँ जी प्रधानमंत्री किस दा मुखी हुंदा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी सरकार दा मुखी हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन भारत विच प्रधानमंत्री दा पद की है। हाँ जी भारत विच प्रधानमंत्री दा पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन हेठ लिखियां विचों किहड़ा असमानता का उदाहरण। हाँ जी इन्हां दे विचों किहड़ी ऑप्शन आ जिहड़ी असमानता की उदाहरण नहीं है। सरकार की चोण लई मतदान देना असमानता की उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस तो इलावा किसी धर्म नाल जुड़े होना एक ही भाषा का प्रयोग करना पैसा कमाना ये सारे असमानता दीयां उदाहरणां ने। नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं जी हेठां लिखियां विचों किहड़ा असमानता का उदाहरण नहीं है। सॉरी मैनूं लगदा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है तो इसका आंसर मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ एज अ टेस्ट मानते हुए इसनूं भी अटैम्प्ट कर लेना। नैक्सट क्वेश्चन अनेकता विच एकता ये वाकंश किस व्यक्ति वालों कहा गया है। हाँ जी अनेकता विच ही एकता ये वाकंश जवाहर लाल नेहरू वालों कहा गया सी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਐਸਕਾਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਆ ਐਸਕਾਰਬਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਲੀਫਿਰਾਲ ਕਿਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਲੀਫਿਰਾਲ किस विटामिन का रसायनिक नाम आ? विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट इत्थे कक्का देख के के लगा के आउणगे, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत होवेगा। कैलीफिराल किस विटामिन का रसायनिक नाम आ? विटामिन डी का। क्वेश्चन असीं करदे हां जी, मनुखी खून नूं किन्ने समूहां विच वंडिया गया है? हाँ जी मनुखी खून नूं किन्ने समूहां दे विच वंडिया गया, किन्ने ग्रुप दे विच वंडिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 4 दे विच। मनुखी खून नूं 4 भागां दे विच वंडिया गया है, 4 ग्रुप्स दे विच वंडिया गया है। वो किहड़े-किहड़े ने तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच लिखोगे, क्योंकि कॉमन आ, सब नूं ही पता वा। नैक्सट क्वेश्चन, शरीर के टिशूआं विच पानी की अंते अधिक घाट नूं की कहा जाता है? हाँ जी शरीर के टिशूआं दे विच पानी की जिहड़ी ज़्यादा अधिक घाट आ जिहड़ी हो जाती है तो उसनूं की कहा जाता है? उसनूं कहा जाता है निरंजलीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, ठीक मात्रा विच प्रोटीन लैण लई मनुख नूं की खाना चाहिदा है? हाँ जी ठीक मात्रा दे विच प्रोटीन लैण लई मनुख नूं दालां खाणियां चाहीदियां ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है। ठीक मात्रा दे विच प्रोटीन लैण दे लई सानूं वध तों वध दालां खाणियां चाहीदियां ने, क्योंकि दालां दे विच की हुंदा? सब तो वध प्रोटीन हुंदा, पर उस तो भी ज़्यादा प्रोटीन हुंदा वा जदों एक दाल पुंगर जांदी आ। ठीक है, मान लो मूंगी दी दाल लो जां छोलियां दी दाल लो, कोई भी दाल लो, जदों उसनूं तुसीं भिओं के रख दो, उस तो बाद किसी मलमल के कपड़े दे विच पा के अपनी रसोई की टूटी नाल बन दो। जदों भी तुसीं रसोई च पानी वगैरह पीण गए, नाल ही जदों भी गेड़ा लग्या उहदे ते थोड़ा जिहा पानी छिड़क आंदा, इहदे नाल कि ओह पुंगर जावेगी। उसनूं तुसीं नमक लगा के कच्ची भी खा सकदे हो, तो उसदे विच सब तो वध प्रोटीन हुंदा। ठीक है, ये तुसीं याद रखना, बहुत ज़्यादा हैल्दी हुंदा है साडे लई। नैक्सट क्वेश्चन, अंधराता किस विटामिन की घाट कारण हुंदा है? हाँ जी मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया सी कि ए ते तुसीं याद रखी ना, ए दी घाट नाल अंधराता हुंदा वा, बी दी घाट नाल बेरी बेरी हुंदा, सी दी घाट नाल सकरवी हुंदा, ते विटामिन डी दी घाट नाल रिक्टस हुंदा। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, जेकर कोई मनुख हमेशा पालिश किए हुए चावल खावे तो उसनूं किहड़े रोग होने की संभावना है? हाँ जी जो कोई मनुख हमेशा ही पॉलिश किए हुए चावल खावे तो उसनूं बेरी बेरी का रोग होने की संभावना हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि उहदे विच विटामिन बी है जिहड़ा पॉलिश किए हुए चावल दे विच विटामिन बी है जिहड़ा नष्ट हो जाता वा। ठीक है, तो उहदे नाल साडे शरीर दे विच भी विटामिन बी की जिहड़ी घाट पैदा हो जाती है, तो सानूं विटामिन बी की घाट नाल बेरी बेरी रोग हो जाता। केरल के लोग किहड़ी भाषा बोलते हैं? हाँ जी केरल के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, हीराकुंड योजना किस राज की है? हाँ जी हीराकुंड योजना उड़ीसा राज की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, भारत के किस राज विच सब तो ज़्यादा प्रतिशत भूमि का भाग जंगलाधीन आ? हाँ जी भारत के किस राज विच सब तो ज़्यादा जंगल ने, जां फिर तुहानूं इस तरह भी आ सकदा ज़्यादा प्रतिशत भूमि का भाग जंगलाधीन आ? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। त्रिपुरा की जे असीं गल करिए तो त्रिपुरा की कैपिटल की आ? तला। नैक्सट क्वेश्चन, चीतिਆਂ ਲਈ प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय नैशनल पार्क किस राज विच आ? मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हां, जिहड़े स्टूडेंट वीडियो नूं ध्यान नाल देख रहे हैं उन्हां नूं तां हुण तक याद भी हो गया होना कि चीतिਆਂ ਲਈ प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय नैशनल पार्क, दुधवा नैशनल पार्क मैं तुहानूं दस चुकी हां कि कित्थे आ। ठीक है, दुधवा नैशनल पार्क उत्तर प्रदेश दे विच आ। हुण इस क्वेश्चन दे विच तुहानूं नवीं चीज़ की पता लगी आ कि चीतिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ प्रसिद्ध आ। ठीक है, दुधवा नैशनल पार्क काहदे ਲਈ प्रसिद्ध आ? चीतिਆਂ ਲਈ प्रसिद्ध। दुधवा नैशनल पार्क उत्तर प्रदेश दे विच आ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की आ? लखनऊ। नैक्सट क्वेश्चन, भारत का सब तो घट वर्खा वाला खेतर है? हाँ जी भारत का सब तो घट वर्खा वाला खेतर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयपुर। ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी असीं, भारत का दक्षिणी भाग सारा साल क्यों गर्म रहिंदा है? हाँ जी भारत का दक्षिणी भाग सारा साल क्यों गर्म रहिंदा है? भूमध रेखा के नेड़े होने कारण। भूमध रेखा के नेड़े भारत का किहड़ा भाग आ? दक्षिणी भाग आ। इस गल नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना। भूमध रेखा के नेड़े होने कारण सारा साल गर्म रहिंदा है भारत का दक्षिणी भाग। नैक्सट क्वेश्चन, हीराकुंड योजना का निर्माण किस नदी उपर होया?
हाँ जी, हीराकुंड योजना का निर्माण महानदी के उपर होया सी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, भारत विच पहली रेल कदों चलाई गई? हाँ जी, भारत दे विच पहली रेल मुंबई तो ठाणे तक चली सी, जिहड़ी कि 16 अप्रैल 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 MCQ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ, ਜੇਕਰ A ਅਤੇ B ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ A ਅਤੇ B ਦੋ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਅਤੇ 5 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਈਵਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈਵਨ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ 3 ਤੇ 5 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 3 + 5 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਬਣੂਗਾ। 8 ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। 3 ਤੇ 5 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ A × B ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 5 15, 15 ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ A + B, ਜਾਨੀ ਕਿ 3 + 5 8 + 1 9, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਔਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ A + B ਨੂੰ, 3 5 15 + 2 ਕਰੋਗੇ 17, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 7 ਚੌਕਾ 28 ਹੁੰਦੇ ਆ, 280 ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 31 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 8 8 3 8 24। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 7/8 ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 112 ਬਣੇਗਾ। 13 8 104 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਓ ਤੇ 4th ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, 7 5 35 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ 8 ਚੌਕਾ 32 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 32 ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 35 ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਵਾ 7/8 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3rd 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 34 ਰੁਪਏ ਦਾ 15% ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 34 ਰੁਪਏ ਦਾ 15% ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 34 ਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। 15% ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1/100, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਟੇ 100 ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 5 ਦੀ ਇਹ 15 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, ਨਾਲ 0 ਪਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾ ਲਈ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਹੀ 5 ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 34 ਗੁਣਾ 3/20। ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 17 ਤੇ 2 1 ਦੂਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ 0 ਪਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ 0 ਲਗਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 17 30 51। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆ 10 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ। 5 51 ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨੀ 0 ਆ 1, ਜੇ 1 0 ਆ ਤਾਂ 1 ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਖਰ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ये कितना बन गया तुहाडे कोले 5.1 5.1 ਕਿਹੜੀ ऑप्शन नंबर बी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ मैडम मगर तो 0 भी लगे आ। मैं तुहानू कल भी दसिया सी कि आफ्टर पॉइंट 0 का कोई भी मीनिंग नहीं हुंदा ते लॉजिक मैं तुहानू ऑलरेडी दस दिता सी। हाँ जी अगला नैक्सट सम देखो फोर्थ सम दे विच की है एक वस्तु नू 100 रुपए विच वेचिया जांदा मतलब सेलिंग प्राइस कितना वा 100 रुपए का है ठीक है। तो उस वस्तु को 100 रुपए के जो वेचा जाता 15 रुपए का कितना होया लाभ होया 15 रुपए का लाभ होया तो खरीद मुल कितना बनेगा खरीदी किन्ने सी जे वेच 100 रुपए च दी 15 रुपए का लाभ हो गया तो खरीदी तुसी किन्ने च सी 85 रुपए दे विच। उस तो बाद तुहाडा लाभ किन्ने दा होया 15 रुपए का। लाभ प्रतिशत तुसी पता करना जो भी असी लाभ प्रतिशत पता करना हुंदा असी उपर लिखते हैं लाभ डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस नाल ते गुणा कर दिंदे आ 100 नाल क्योंकि प्रतिशत पता करन दे लई असी हमेशा ही गुणा 100 करते हैं ठीक है। हुण लाभ कितना होया वा 15 रुपए का होया वा ते कॉस्ट प्राइस कितना तुहाडा 85 रुपए गुणा 100 ठीक है। हुण असी 5 ते भाड़े ते कट करांगे 17 पाया किन्ने हुंदे आ 17 पाया हुंदे तुहाडे कोल 85 ते 3 5 15 ते तुहाडे कोले बन गया 300 बटा 17। तुसी ऑप्शन चेक करो एक बार हेठा 17 किहड़ी ऑप्शन च पिया वा ऑप्शन नंबर सी च पिया वा ते यही तुहाडा आंसर बन गया ठीक है। जेकर तुसी इस तरह नहीं करना चाहते तो तुसी इत्थों करके भी देख सकते हो 17 ते तुसी डिवाइड करोगे पहला 17 ते जाएगा फिर मगर बच जाएगा 13 उपरों 0 उतारी तो उस तो बाद जाएगा 17 7 119 ठीक है। तो ये तुहाडे कोले मगर बच जाएगा 11। तो देखो फिर तुहानू मैं कल भी मिक्स फ्रैक्शन लिखनी सिखाई सी जो तुहाडा डिवाइजर उहनू हेठा रखो जो तुहाडा आंसर आया उहनू साइड ते रिमाइंडर उपर तो ये तुहाडा राइट आंसर बन गया। हाँ जी अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी अगे नैक्सट क्वेश्चन मैं तुहाडे सामने लिख दिता है देख सकते हो तुसीं 76 रुपए नू 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात विच वंडिया जाता है तो सब तो छोटा भाग किहड़ा होवेगा मतलब सब तो घट रुपए किहड़े भाग दे विच किहड़े हिस्से दे विच बनणगे। तो सब तो पहला देखो जिहड़े अनुपात दे विच वंडिया जांदा मैं तुहानू अगे भी करवाया कि हमेशा ही असीं अनुपात नू एक्स दे विच लिखदे हां ठीक है। तो मैं की लिख लिया एक्स दे विच लिख लिया सब नू कि मान लो पहले बंदे नू 4 हिस्सों के विच ही वंडना ना तुसीं पहले बंदे नू 7x रुपए आए दूजे नू 5x आए तीजे नू 3x रुपए आए चौथे नू 4x रुपए आए तो असी दो टोटल रुपए किन्ने हो गए जिहड़े इन्हों आए आ 7 5 12 12 3 15 15 4 19 19x बन गए तो टोटल रुपए सानू दिते भी तो होए आ 76 रुपए वो मैं बराबर रख लिया तो एक्स कितना आ गया 76 बटा 19 19 चौका होंगे 76 तो एक्स दे आ गए 4 रुपए। जे एक्स 4 रुपए आ तो पहले बंदे नू किन्ने रुपए मिलणगे 7 चौका 28 होंगे 28 रुपए दूजे नू 5 चौका 20 तो तीजे नू 12 चौथे नू 16 तो सब तो घट किहदे हिस्से आए 3 दे हिस्से आए 3 दे हिस्से किन्ने रुपए आए 12 तो सब तो छोटा यही हो गया ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तुसीं इस दे विच वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स की तो उस तो तुहाडा आंसर तुहाडे सामने आ जाएगा हो चाहे 3 दिते होण 5 दिते होण ठीक है। तुसीं ऐड करके देख लेना टोटल नंबर दे इक्वल रख देना। अगे असीं करते हैं नैक्सट सम उन्हें बोलिया कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अते 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोणी त्रिभुज का खेत्रफल पता करो। हाँ जी मैं तुहानू खेत्रफल एरिया एंड पैरीमीटर ते ऑलरेडी फॉर्मूले करवाए हुए हैं। जो भी असीं त्रिभुज का खेत्रफल पता करना असीं की लगाउने 1/2 मल्टीप्लाई बाय आधार ते गुणा उचाई। हुण एक समकोणी त्रिकोण दित्ती समकोणी किहड़ी त्रिकोण हुंदी आ जिहदे एक एंगल 90 डिग्री का हुंदा उहने बोलिया एक भुजा उहदी 3 आ दूसरी 4 आ ते तीसरी 5 आ ठीक है। मैं ले लिया आधार आधार कितना वा 5 आ उचाई कितनी आ 3 ठीक है। उचाई कितनी होगी 3 ते 5 तीए किन्ने हुंदे आ 15 15 नूं मैं 2 ते डिवाइड किया 15 नूं जदों मैं 2 ते डिवाइड किया तुसीं देखो जिहड़ी सब तो वड्डी समकोणी त्रिभुज दे विच इत्थे देखो मैं किड्डी वड्डी गलती की है तो तुहानूं कितना कुछ सीखण नूं मिलेगा इस गलती दे विचों। जदों भी समकोणी त्रिभुज दित्ती होवे हमेशा ही जो वड्डी भुजा हुंदी आ ओह हुंदी है करण कारण इहदे विच वड्डी भुजा इहनूं असीं आधार बोलदे आ ठीक है। कारण मतलब इत्थे 5 आ जिहड़ा ओह वड्डी भुजा होवेगी सब तो वड्डी भुजा की आ करण करण की आ 5 पिया वा इत्थे कारण हुंदा सब तो वड्डी भुजा मतलब जो सब तो वड्डी भुजा वा इहदे विच ओह असीं करण लवांगे बाकी 2 भुजावां तुसीं किसी भी तरह लै सकदे हो। जे डायग्राम गिवन होवेगी
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਧਾਰ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 4 ਆ, ਉਚਾਈ ਤਾਂ 3 ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ 4 ਆ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, 2 ਕੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, 2 ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, 2 दूनी 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2 गुणा 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं, 1 रुपये ते सधारण ब्याज लग के 9 रुपये बनने लई 60 साल लग गए। मान लो तुसी बैंक दे विच 1 रुपया जमा करवाता, वो जो 1 रुपया तुसी जमा करवाया 60 साल बाद तुसी बैंक दे विच गए कढवाउण, तो बैंक वाले ने बोलिया भी हुण 9 रुपये बन गए आ, तो तुहानूं 9 रुपये मिलणगे। ठीक है, 1 रुपये तो तुहाडा आपदा सी। ठीक है, 1 रुपया की सी तुहाडा प्रिंसीपल, तुहाडा मूलधन, तुहाडी मूल राशि सी, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵਿਆਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 9 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੇ 9 ਰੁਪਏ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ ਰੇਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100। ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 6/10 ਨਾਲ r, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 8। ਹੁਣ ਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ 10 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਣਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ 6 ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਬਣੇਗਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 40/3। 40/3 ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ 3 ਤੇ, 1 ਤੀਆ 30, ਫਿਰ 3 ਤੀਏ 9। मैं तुहानूं दस्सिया होया कि डिवाइजर असी हमेशा ही हेठां लिखना है, जो आंसर आया उन्होंने साइड ते लिखो तो जो बाकी बचे उन्होंने ऊपर। 13 सही 1/3 दी ऑप्शन है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैरी सिंपल, बस एक बार समझ के करना। इत्थे तुसीं ब्याज नूं 9 रुपए मन के नहीं चल सकते, 1 रुपया तो तुहाडा आपदा ही सी ना जो जमा करवाया सी तुसीं बैंक दे विच। हाँ जी, अगे असीं करदे हां, जेकर कोई व्यक्ति 5 मिनट विच, हाँ जी, जेकर कोई व्यक्ति 5 मिनट दे विच, टाइम कितना दिता होया 5 मिनट का दिता होया, टाइम है तुहाडे कोले 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट दे विच 2/3 किलोमीटर चलदा है, डिस्टेंस कितना कवर करदा 2/3 किलोमीटर का कवर करदा। तो स्पीड फाइंड आउट करो, स्पीड जिहड़ी तुसीं फाइंड आउट करनी आ किलोमीटर प्रति घंटे दे विच करनी आ, पर इत्थे तां सानूं मिनट दिता होया, तां इहनूं भी असीं अगे चेंज करांगे। हुण देखो, दूरी का फॉर्मूला हुंदा समा गुणा जाल ਜਾਂ गति ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ ਇਹ, दूरी का फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਣਾ ਚਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ दूरी पता 2/3 ਆ। ठीक है, स्पीड ਤੁਸੀਂ पता करनी ਆ, टाइम ਲੱਗਿਆ 5 मिनट का, टाइम 5 मिनट का ਲੱਗਿਆ ਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, 5 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੰਨ ਲਗਾ ਲਓ। ठीक है, तो एक इधर आके भाग हो के इस तरह का बन जाएगा। तो ये मैं तुहानूं दस्सिया सी 2/3 जिहड़ा साडा वड्डा डिवाइड आ उहनूं मल्टीप्लाई च चेंज करके हेठां वाले दा रेसिप्रोकल कर दो, ऑल्ट करम। ठीक है, उस तो बाद तुहाडे कोले बन जाएगा उपर वाले नूं उपर वाले नाल मल्टीप्लाई करो, हेठां वाले नूं हेठां वाले नाल, इत्थे तुहाडे कोले आ गया 15। हुण तुहाडे कोले जो गति आई आ वो आई आ 2/15 किलोमीटर पर मिनट, पर सानूं किहदे च पुछिआ उहने पर घंटे दे विच पुछिआ, प्रति घंटे दे विच पुछिआ। तो असीं की करांगे 1 घंटे दे विच 60 मिनट हुंदे आ, 15 एकम 15, 15 चौकी 60, 4 दूनी किन्ने हुंदे आ 8, ते इत्थे तुहाडा 8 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा उहनूं चलना पवेगा। गति की हुंदी आ, किलोमीटर प्रति घंटा की हुंदा इत्थे। मान लो मैं तुहानूं कह रही हां कि मेरी गड्डी दी स्पीड दी तुसीं बोलदे हो कि किन्नी क एवरेज आ, तुसीं इस तरह ही बोलदे हो ना कि तेरी गड्डी दी किन्नी क एवरेज दे दिंदी आ, तुसीं बोलदे हो हाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिंदी आ, मतलब वो 1 घंटे दे विच 100 किलोमीटर चलदी आ। तो इत्थे भी यही होया कि 1 घंटे दे विच वो आदमी 8 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ये तुहाडी होगी स्पीड उस आदमी दी। अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे असीं नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, मैं बोर्ड ते लिख दिते ने तुहाडे सामने, जिहड़े स्टूडेंट्स आप करना चाहुंदे ने तुसीं आप कर सकदे हो।
वीडियो नू रोक के अगे देखो 3 दे पहले 5 गुणज की औसत की होगी। 3 दे पहले 5 गुणज का मतलब कि 3 दे पहले 5 मल्टीपल लै लो। 3 दे पहले 5 मल्टीपल का की आ, जेकर नहीं पता लग रहा तो 3 का पहाड़ा लिख लो 5 तक, ठीक है। तो नहीं तो फिर इस तरह करो कि 1 2 3 4 5, उन्हें पहले 5 गुणज बोलिया पर वो 3 दे गुणज आ, तो 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो। इत्थे तुहाडे कोले बन गया 3 6 9 12 ते 15। हुण उन्हें की बोलिया औसत। औसत मैं तुहानूं दस्सिया होया पहलां भी कि हमेशा ही सेंटर दे विच पई हुंदी आ। औसत साडी सेंटर दे विच पई हुंदी आ। मान लो तुहाडे घरे कोई लेबर लगी आ काम करन दे लई, कोई काम चल रहा, उस लेबर दे विचों तुसीं पहले दिन उस लेबर दे जेकर तुसीं हिसाब लगाओ तो पहले दिन लेबर ने 3 रोटियां खाधियां, दूजे दिन 6 रोटियां खाधियां, तीजे दिन 9 रोटियां खा लियां, चौथे दिन 12 ते 5वें दिन 15 रोटियां खा लियां, ठीक है। मान लो उन्होंने इन्ना रोटियां खा लियां। हुण जदों कोई तुहानूं कोई पुछे कि रोटी पानी का किन्ना क खर्चा आ जांदा, किन्नियां क रोटियां दी लगदी है, तुसीं की करोगे विचों? ये थोड़ी ना दसोगे कि पहले दिन 3 खाधियां, फिर 6 खाधियां, फिर 9 खाधियां। तुसीं की कहोगे कि है 9 या 10 की एवरेज है, कि डेली की 9 या 10 की एवरेज है। तुसीं यही बोलोगे ना 9 या 10 की एवरेज है, मतलब जो नंबर सेंटर च पिया हुंदा उही एवरेज हुंदा साडा, ठीक है। उही की हुंदा एवरेज हुंदा जो सेंटर च पिया। 2 इधरों छड्डो 2 इधरों छड्डो, जो सेंटर च रह गया उही तुहाडा एवरेज आ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वैसे जेकर तुसीं ट्रेडिशनल नाल करना चाहुंदे हो तो एवरेज का फॉर्मूला हुंदा सम ऑफ टर्म्स, उपर हुंदा सम ऑफ टर्म्स, हेठ हुंदा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। जो इन्हां सारियां दा जोड़ कर दो, बटा कर दो, जिन्ने नंबर दिते 5 दिते या 5 दे नाल डिवाइड करो। जो तुसीं डिवाइड करोगे आंसर चैक कर लेना 9 ही बनेगा। अगे देखो अंडर रूट 0.16 का मुल पता करो। अंडर रूट 0.16, अंडर रूट 0.16 का तुसीं मुल पता करना। तुसीं सब तो पहला पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाता 16 बटा आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट आ तो 2 0 लगा दो एक दे नाल। हुण मैनूं पता 16 वा जिहड़ा 4 का स्केयर हुंदा, मैं लिख सकदी हां 16 नूं 4 4, ते इहनूं मैं लिख सकदी हां 10 नूं 10 गुणा 10, तो आंसर तुहाडे कोले आ गया 4 बटा 10। हुण मैं पॉइंट लगाउणा तो 0.4 लगाऊंगी, उपर 4 इदां ही रख लूँगी, हेठां 1 0 1 अखर छड्ड के मैं पॉइंट लाता तो 0.4 ऑप्शन बी पई है। तुहाडा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, मोस्टली ये सम पंजाब पटवारी के पेपर च भी आया, पंजाब पुलिस के पेपर च भी आया, बट इत्थे 9 लिख के आया, इत्थे 9 लिखिया होया। 9 वाला सम तो यूपीएससी के लैवल तक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। तो मैं तुहानूं इदां दी ट्रिक दसूँगी, मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं दस्सण वाली इहदे विच, जो बिल्कुल लॉजिकल ट्रिक दसूँगी जिहड़ी तुहानूं एंड तक याद रह जाए कि अगे जाके जिहड़े स्टूडेंट यूपीएससी का पेपर फिल करने वाले आ उन्हां दे लई भी ये इंपॉर्टेंट भी बने ते उन्होंने कदे भी भुल्ले ना, ठीक है। ना भुल्लण वाली ट्रिक असीं करन वाले आ, बिल्कुल 9 दे नाल ही रिलेटिड होवेगी। मैं तुहानूं विचों होर नंबर भी कुछ दसने सीगे तां जो तुसीं समझ सको कि किस तरह ये सम होना, इसे करके मैं इस सम विच ऐड कीता। मैं इत्थे 9 भी लै सकदी सी, बट मैं यह सम इस करके बनाया तां जो तुहानूं किस लॉजिक भी दस सकां कि 9 की जगह ते जे कोई होर नंबर आउंदा तां, ठीक है। हाँ जी, इन्हां विचों किहड़ी संख्या जिहड़ी 45 ते पूरी पूरी वंडी जाएगी? सब तो पहला 45 ते वंडनी आ। तुसीं 45 ते कोई 2 गुण इदां दे लो जिन्हां दा आपस च कोई रिलेशन नहीं गा, मतलब 45 ते गुणनखंड 2 इदां दे लिखो जिन्हां दा आपस च कोई रिलेशन नहीं गा, जिवें 5 ते 9, 9 5 किन्ने हुंदे आ 45, पर 5 ते 9 का आपस दे विच कोई रिलेशन नहीं गा, ठीक है। मतलब आपस दे विच इन्हां दा कोई रिलेशन नहीं गा। 9 5 45 हुंदे आ। तुसीं देख सकदे हो इहदे मगर 0 है, इहदे मगर भी 0 है, इहदे मगर 0 5 आ ते इहदे मगर 5 आ। किसी भी नंबर के मगर 0 ते 5 होवे पक्का ही आ कि वह 5 ते डिवाइड होवेगा ही होवेगा, पक्का ही आ कि वह 5 ते जाऊगा ही जाऊगा। मगर की बच गया साडा 9। मान लो इन्हां चों कोई भी नंबर जिहड़ा 9 ते डिवाइड हो गया तो पक्का ही आ कि 45 ते भी डिवाइड होवेगा, पक्का ही आ कि 45 ते भी डिवाइड होवेगा। इस दे लई जो तुसीं शॉर्ट ट्रिक करनी होई आ कि इन्हां सारे नंबरां दा जोड़, इन्हां सारे नंबरां दा जोड़ करो जिन्ने भी तुहानूं डिजिट दिते हुए आ, जिवें 8 1 8 1 6 7 0, 1 8 किन्ने हुंदे 9 9 ते 1 10 10 6 16 16 ते 16 ते 7 किन्ने हुंदे आ 23, 23 की 9 ते डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, मतलब ये भी ऑप्शन साडी नहीं होगी। अगे ऑप्शन बी देखो 3 3 3 3 6 1 7 फिर 8 8 3 11 11 ते 5 किन्ने हुंदे आ तुहाडे कोले 11 च तुसीं 5 ऐड करोगे 16 16 9 ते डिवाइड हुंदा नहीं हुंदा, ऑप्शन बी भी तुहाडी नहीं होगी। अगे तुसीं बी
देखो समझ लेना इनू कि सम आ जिहड़ा 9 ते डिवाइड होना चाहिए, इन्हां दा जोड़ 9 ते डिवाइड होना चाहिए। 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 ते 6 किन्ने हुंदे आ 18, 18 + 0 18, 18 बन गया। 18 9 ते डिवाइड हुंदा, हाँ जी बिल्कुल हुंदा। 9 दूनी 18 हुंदे आ, तो ऑप्शन तुहाडा सी ही राइट होवेगा। ऑप्शन तुहाडा सी ही राइट होवेगा। बाकी कोई भी नंबर इन्हां चों 45 ते डिवाइड नहीं होगा। बस इन्हां दा सम देख लेना कि 9 ते डिवाइड होवे। देखो इधर भी करके देख लेने आ। 5 5 10 5 15 15 3 18 18 ते 2 19 19 9 दे पहाड़े च नहीं आउंदा, तो ये भी डिवाइड नहीं होवेगा। अगे देखो, अगे असीं करदे नैक्सट सम 75% दा, हाँ जी 75% दा 480 ਅਤੇ 48% ਦਾ 750 कितना होवेगा। जेकर तुसीं देखो तो इस सम दे मगर बहुत वड्डा लॉजिक आ। जेकर तुहाडा मतलब कि कई बार इदां हुंदा कि पेपर दे विच दिमाग बहुत ज़्यादा चलन लग जाता, पर कई बार इदां हुंदा कि टेंशन हुंदी है, पता नहीं लगता पेपर दे विच कि किस तरह सम किहड़ा होना। तो मैं तुहानूं दोनों ही तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ दस दिन्नी आ कि 75% ਦਾ 400 ਦਾ ਦੀ जगह ते ਅਸੀਂ गुणा लै लैंदे आ 80 प्लस 48% ਦਾ ਦੀ जगह ते गुणा पा लो 475, सॉरी 750 बोलना सी, ठीक है। हुण देखो इत्थे परसेंटेज लिखिया, जेकर मैं एदी 0 एदे मगर शिफ्ट करदा, एदी 0 एदे मगर शिफ्ट करदा तो पहला वाली बन जूगा, एदा प्रतिशत मगर ले जा तो पहला वाली टर्म ही बन जूगी। एदा मतलब कोई एक सॉल्व करो, उसका डबल करके तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाय चांस ये साडे माइंड च नहीं आउंदा, ठीक है, नहीं आता तो तुसीं अलग-अलग भी फाइंड आउट कर सकते हो। इत्थे क्या हो जाएगा 75/100 गुणा 480, 0 नाल 0 कट, उस तो बाद तुसीं 75 नूं ते 48 नूं गुणा करनी आ। सब तो पहला तुसीं देखो 75 नूं तो आपां कट कर लैंदे आ 2 दे 5 दे पहाड़े ते 15 5 75, अगे आ गया तुहाडे कोले 2, फिर 2 नूं अगे असीं कट कर सकते हैं 48 ते, इत्थे बन गया तुहाडे कोले 24, 24 ते 15 नूं तुसीं मल्टीप्लाई करो 4 5 20, 5 दूनी 10 ते 2 12, ते इत्थे बन गया तुहाडे कोले 24, ते इत्थे आ गया तुहाडे कोले 360, 360 का तुसीं डबल करोगे तो तुहाडे कोले बनेगा 720। तो ऑप्शन नंबर तुहाडा डी राइट होवेगा। जेकर तुहानूं नहीं पता लग रहा कि असीं डबल क्यों करना वा, क्योंकि असीं 0 नूं इधर शिफ्ट कर देंगे, प्रतिशत नूं उधर, बनता तुहाडे कोले यही टर्म जानी आ। बाई चांस नहीं पता लग रहा तो सीधा ले लो 48% का मतलब कि हुंदा बटा 100 गुणा करो 750 नाल, 0 नाल 0 कट, फिर 5 दे पहाड़े ते कट कर दो, इत्थे बन गया 2 ते इत्थे बन गया 15 ते इत्थे बन जाना तुहाडे कोल 24, 24 नूं 15 नाल गुणा कीती तुहाडे सामने पई है 360, 360 प्लस 360 720। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ जी अगे असीं करदे हां नैक्सट सम। एक विद्यार्थी ने 5/4 की जगह ते 4/5 नाल गुणा कर दिती। मान लो तुसीं मैनूं बोलिया कि मैडम इस संख्या नूं 5/4 नाल गुणा करो, मैनूं बाय मिसटेक गलत सुन गया या गलती नाल मेरे तो लिखिया गया 4/5, ठीक है। तब असीं की आ जिहड़ी गुणा कर दित्ती आ मैं, उसकी गलती प्रतिशत गलती की होवेगी, प्रतिशत गलती की गणना असीं पता करनी है कि कितनी वड्डी गलती मेरे तो किन्ने फर्क नाल होई आ, ठीक है। तो वो गणना पहला तो सानू कदे भी सानू नंबर नहीं दिता होगा, जो भी इस तरह का सम आएगा वो नंबर तुसीं आप सोचना, मल्टीप्लाई करने लई तुसीं मैनूं ये नंबर दिता, मैं इहदे नाल करती, हुण मैं वो नंबर लेना जिहड़ा 5 ते 4 दोनों ते डिवाइड हो जाए, जां दोनों का एलसीएम होवे, दोनों का एलसीएम बोल सकते हो तुसीं। 5 ते 4 का एलसीएम हुंदा 20, तुसीं वैसे भी देख सकते हो 5 ते 4 का आपस में कोई रिलेशन नहीं, मल्टीप्लाई करो 20 बनेगा, ठीक है। हुण मान लो जिहड़ा वो नंबर सीगा जिन्हों मल्टीप्लाई करनी सी मैं, वो 20 सीगा, हुण 20 सीगा, 20 नाल मैं मल्टीप्लाई कीती, ठीक है, 20 नाल मैं गलत नंबर नाल मल्टीप्लाई करती, ये साडी एरर चल रही है, ठीक है, तो ये साडा सम चल रहा एक्चुअल सम। हुण 20 नूं मैं कट किया, 5 का 20 हुंदे आ, 5 5 25, मतलब संख्या मेरे को कितनी आ गई सी 25। उस तो बाद जिहड़ा राइट नंबर आ वो कितना वा 25 आ, तो उस तो बाद जो तुसीं मैनूं मल्टीप्लाई कर लिखिया तो मैं आंसर लैके आई हाँ कट के 16, कितना लेके आई हाँ 16, क्योंकि 4 ते कट होगा, चौकम चौके किन्ने हुंदे आ 16, मैं गलती नाल आंसर 16 कढ़िया, जबकि सही आंसर तुहाडा 25 सी। उहने पुछिया कि प्रतिशत गलती की होवेगी, तो मेरा फर्क की है दोनों संख्यावां दे विच, फर्क की है दोनों संख्यावां दे विच 9 का फर्क पै गया, 9 का अंतर हो गया, तो उन्होंने डिवाइड तुसीं करना वा जो तुहाडी सही संख्या वा, गुणा कर देना 100 नाल, 25 चौका किन्ने हुंदे आ 100 ते 9 चौका किन्ने हो गए 36, जो इन्होंने मल्टीप्लाई की। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा राइट आंसर बन गया।
जेकर वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों मित्रों नाल वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे नैक्सट क्वेश्चन मैं तुहाडे सामने लिख दिते ने, तुसीं देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, जेकर अनीता वीना तो 25% ज़्यादा कमाउंदी है तो वीना अनीना तो किन्ने परसेंट घट कमाएगी। देखो हुण अनीता किन्ने परसेंट ज़्यादा कमाउंदी आ, अनीना वीना तो 25% ज़्यादा कमाउंदी आ। 25% कितना हुंदा 100 मगर जेकर असीं देखिए तो 25% कितना हुंदा 1/4 ही हुंदा ना, 1/4 ही हुंदा ना 25%। 100/4 ते 25 बन गया, मतलब 1/4 हुंदा। 100 का चौथा हिस्सा हुंदा 25%, जिन्हों असीं बोलते हैं 1/4। चौथे हिस्से नूं 1/4 ही लिखांगे। तो हमेशा ही जो देखना जो भी असीं रेशो दे विच गल करते हैं तो जिहदे बारे असीं जिहदे नाल कंपैरिजन कर रहे हैं, अनीना दा वीना तो 25% ज़्यादा कमा रही है, वीना तो कमा रही है तो उन्होंने असीं हमेशा मगर लिखते हैं। मतलब वीना जे 4 कमा रही है तो अनीना किन्ने कमा रही है 5 रुपए कमा रही है। जे वीना 4 रुपए कमा रही है तो वीना 5 रुपए कमा रही है, क्योंकि असीं हेठां वाला देखना होंदा जिहदे नाल कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बाद च लिखी दा तो इत्थे की है 4 रुपए कमा रही है तो मैं 5 ही क्यों लिया, क्योंकि एक का ही चौथा हिस्सा कमा रही है ना वो। ठीक है, हुण देखो मैं तुहानूं बोलिया कि बाद वाला लेना हुंदा, मतलब कि ये कोरसपोंडिंग अनीना 5 रुपए कमा रही है, ये कोरसपोंडिंग वीना 4 रुपए कमा रही है। दोनों के विच फर्क कितना वा 1 का। तो किहदे नाल कंपैरिजन करके देखना सी घट कौन कमा रहा, तो वीना नाल अनीना नाल कंपैरिजन कर रहे हैं। वीना का हुण अगले स्टैप दे विच असीं अनीना नाल कंपैरिजन कर रहे हैं ना, किहदे घट कमा रही है तो उहदे पैसे असीं हेठां लिख देवांगे, परसेंटेज करनी आ गुणा 100 कट देवांगे। ठीक है, उस तो बाद तुहाडा इत्थे कट करके आ जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर होवेगा। ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर होवेगा। उम्मीद करती हैं कि इत्थों तक तुहानूं समझ आया होवेगा। देखो 100 का चौथा हिस्सा हुंदा 25%, इस करके जो भी असीं जिहदे नाल कंपैरिजन कर रहे हैं उहदा हेठां वाला नंबर ले लेना, उहनूं बाद वाला मान लैंदे आ। ठीक है, अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन नंबर 15, 35 प्लस। देखो ये जिहड़ा सामा सिंपलीफिकेशन दे विच तुसीं कीता होया बॉड मास, जानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। ठीक है, जिहड़ा तुसीं कीता होया है पहला सिंपलीफिकेशन दे विच तुसीं करदे हो बॉड मास, इहदा एक रूल हुंदा कि सब तो पहला ब्रैकेट खत्म करो, फिर ऑफ जानी कि दा जिन्हों असीं गुणा बोल दिंदे, गुणा सा खत्म करो, उस तो बाद डिवाइड खत्म करो, फिर माइनस ते चलो। ठीक है, उस तो बाद एडिशन खत्म करो, उस तो बाद सॉरी मैं इत्थे माइनस बोल दिता। देखो मैं तुहानूं इत्थों कल्ले कल्ले तो दस दिंदी हां पूरी डिटेल दे विच। इहदा मतलब हुंदा ब्रैकेट, भी ब्रैकेट सॉल्व करो। इहदा मतलब हुंदा वा ऑफ, जानी कि ऑफ नूं असीं बोल दिंदे आ दा जिहड़ा लिखिया हुंदा। ठीक है, तो यदा मतलब हुंदा डिवाइड, यदा मतलब हुंदा मल्टीप्लाई, यदा मतलब हुंदा एडिशन, यदा मतलब हुंदा सबट्रैक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग तुसीं ये खत्म करने हुंदे आ। वैसे भी मैथ दे विच तुसीं देख सकते हो 35 प्लस 15 गुणा 1.5 दिता। मैं तुहानूं बोलिया कि पहला तुसीं गुणा खत्म करो, डिवाइड खत्म करो, डिवाइड है नहीं गा, गुणा खत्म कर दो। गुणा की हुंदे आ, जे मैं पॉइंट हटा ला तो कितना बन गया मेरे को 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 होंदा 225। हुण मैं पॉइंट लगा लैनी आ, क्योंकि एक डिजिट छड्ड के पॉइंट है तो एक डिजिट छड्ड के मैं पॉइंट लगाता। हुण मैं ऐड करना, मैं 35 च 22 ऐड करूँगी तो मेरे को बनेगा 57 नाल 0.5 आ, तो भी लगा लिया। ऑप्शन नंबर डी इत्थे राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, अगे असीं करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 तुहानूं दिता है 72 डिवाइडेड बाय 4। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं पहलां 72 नूं 4 ते डिवाइड कर दोगे, नहीं, पहला तुसीं की करनी है ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, उस तो बाद की करना हुंदा असीं ब्रैकेट जो सॉल्व करनी है तो ये की आ 8 चौका 32, 8 ते 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये अलग टर्म बन रही है। तो ये माइनस करनी है असीं छोटी ब्रैकेट। देखो 14 माइनस 19, मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी 14 माइनस 19, 19 चों 14 कड्ढे किन्ने होणगे 5, नाल साइन लगना वड्डे दा वड्डा 19 आ, 19 दे अगे माइनस आ तो मैं माइनस का साइन लगाता। ठीक है, तो इस करके तुहाडा कितना बन गया माइनस दे 5। हुण तुसीं देखो 72 डिवाइडेड बाय 4, उस तो बाद तुहाडे कोले आ गया 32, माइनस माइनस किन्ने हुंदे आ प्लस, तो इहनूं तुसीं की कर लिया मल्टी मतलब कि माइनस माइनस प्लस, तो हुण तुसीं इहनूं प्लस करोगे तो तुहाडे कोले बन जाना इत्थे 37 बन गया 72। हुण तुसीं देखो 72 डिवाइडेड बाय 4,
चाहे इनू 4 ते डिवाइड कर लो, इनू इस तरह रख लो, ठीक है। जो असीं 4 ते डिवाइड करोगे तो इत्थे तुहाडे कोले बन जाना 1 चौका चौका 8 चौका 32, 18 नूं तुसीं फिर 37 नाल गुणा करनी आ। 18 नूं जो तुसीं 37 नाल गुणा करोगे तुसीं करके देख सकते हो 8 6 7 6 56 6 6 666 तुहाडा आंसर आ गया। जेकर नहीं यकीन तो मैं करके भी दिखा दिन्नी आ। 8 7 50 हुंदे आ, 5 गए हासिल, 8 3 24, 24 ते 5 किन्ने हुंदे आ 24, 5 हुंदे आ 29, ठीक है। उस तो बाद 37 तुसीं ऐड करोगे तो इत्थे तुहाडे कोले बन गया 666, ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर है। हाँ जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, इस दे विच तुसीं देखो जेकर A अनुपात B, A अनुपात B 2 अनुपात 3 दिता है, तो A अनुपात B शॉर्ट ट्रिक करा रही हाँ, A अनुपात B 2 अनुपात 3 दिता है, B अनुपात C 4 अनुपात 5 दिता है। B अगली लाइन च लिखांगे 4 अनुपात 5, क्योंकि A दे कॉरस्पोंडिंग 2 आ, B दे कॉरस्पोंडिंग 3 आ, मैं सेम पहली लाइन च लिख ले। सेम इसी तरह B दे कॉरस्पोंडिंग 4 आ, C दे कॉरस्पोंडिंग 5 आ, मैं वो भी लिख ले। हुण असीं इहदे ते लगा रहे हैं गवांढी मैथड, मतलब कि जो नाल पिया वा उहनूं फिल कर दो, इहदे नाल इधर 3 पिया तो इहदे नाल इधर कुछ नहीं गा, इत्थे 4 ले लो, इधरले पासे वाला रख दो, ठीक है। हुण इन्हां नूं मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तीए 12 अनुपात 3 5 15, ठीक है। देखो हुण कि ये किसी भी सांझे पहाड़े च आ रहे हैं जिहड़े तिन्ने ही आउंदे। हुण जेकर मैं 3 दे पहाड़े की गल करां तो उहदे च 8 नहीं आउंदा, जेकर 2 दे पहाड़े की गल करां उह च 15 नहीं आउंदा, मतलब ये किसी भी सांझे पहाड़े च नहीं आउणगे। तो ऑप्शन नंबर इत्थे तुहाडी देख लो किहड़ी बन रही है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन तुहाडे कोले हैगी आ बी। बी ऑप्शन आ सेम इसे तरह की, जल्दी दे विच तुसीं भी गलत ना टिक कर देना, ठीक है। हाँ जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, अगे देख सकते हो तुसीं नैक्सट सम मैं बोर्ड ते लिख दिते हुए ने। ए एक काम नूं 12 दिन विच अते बी उसे काम नूं 15 दिन विच खत्म करता है, जेकर दोवें मिल के काम करन तां किन्ने दिनां विच खत्म करनगे। देखो ए एक काम नूं 12 दिनां दे विच खत्म करदा, बी उसे काम नूं 15 दिनां विच खत्म करदा, दोनों दा एलसीएम लवांगे तो 60 बनेगा, मतलब इन्हां दोनों नूं टोटल काम किन्ने आ 60 काम आ। टोटल काम किन्ने आ 60 काम आ, ते ए दी एफिशिएंसी किन्नी आ 12 नूं 60 ते डिवाइड करांगे, ए दी एफिशिएंसी हैगी आ 12 नूं जदों असीं 60 ते डिवाइड कीता तो ये बन जाएगा 5, 15 नूं करांगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ए एक दिन दे विच 5 काम करदा, बी एक दिन दे विच 4 काम करदा, दोवें मिल के एक दिन विच किन्ने काम करनगे 9 काम करनगे, 5 + 4 9 हुंदे आ, दोवें मिल के एक दिन दे विच 9 काम करनगे। टोटल काम है इन्हां नूं 60, 3 दे पहाड़े ते डिवाइड करोगे इत्थे आ जाऊगा 20 तो इत्थे बन जाऊगा 3, तो 20/3 यदि तुसीं मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे 6 तीए किन्ने हुंदे 18, 2 सही 6 सही 2/3 तुहाडा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगे तुहानूं सम बोलिया उन्होंने 237.0 विच 7 का स्थानक मुल की होवेगा। 237.07 दे विच तुसीं 7 का स्थानक मुल दसना। देखो तुसीं हुण तक पढ़िया वा, जे मैं तुहानूं 571 लिखना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब पहला तुसीं इकाई पढ़िया, उहदे मतलब हुंदा 1, दहाई का मतलब की हुंदा 2 यानी कि 10, ते इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब की हुंदा वा 100, ठीक है। सेम इदा हज़ार का मतलब 1000, फिर 10,000, 10,000 का मतलब, पर पिछे नूं भी तो चलते हैं, पिछे नूं इहदा चलदा हुंदा इत्थों शुरू हो जाता 10वां 100वां। जे तो इत्थे वो 7 का मुल पुछ लेंदा, हुण तां उहने 7 का ही मुल पुछया वा कि 7 का मुल की होवेगा। आफ्टर पॉइंट 7 का मुल कितना दिता होया वा, 7 का मुल दिता होया वा 7 जिहड़ा दिता वा उहदा मुल कितना होवेगा 100वां, 7 100वां। देखो पहला की दिता होया वा 1 अंकर, तो वो की हो गया इहदा 10वां हिस्सा, फिर अगे 7 दिता, ये की हो गया 100वां। अगे जे असीं इहदे च देखीए तां इहदे विचों तुहानूं 7/100 दी तां ऑप्शन नहीं स्थानक मुल दी, 7/10 की तो ऑप्शन नहीं है 100 की, सॉरी 7/100 की 700वां बन गया ना। जे असीं आफ्टर पॉइंट वाला देखते हैं ये तो वो तो ऑप्शन नहीं गी, मतलब ये नहीं आएगा। फिर अगे असीं देखते हैं स्थानक मुल दे विच सानूं ये भी तो दिता, पर ये पॉइंट तो पहला दिता, पॉइंट तो बाद 10वां 100वां 1000वां शुरू हो जाते हैं, पॉइंट तो पहला इकाई, इकाई दे विच 7 का हिस्सा की बनूगा 7 ही बनेगा। जेकर असीं इकाई दे विच देखिए तो 7 का हिस्सा 7 ही बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ये की होगा, ऑप्शन इत्थे बाय मिस्टेक 0 है, इत्थे 7 ही आ, ठीक है। बाय मिस्टेक मेरे तो गलती नाल 0 पै गया,
ऑप्शन नंबर ए तुहाडा राइट आंसर होवेगा। हाँ जी, अगे असीं करदे हां नैक्सट क्वेश्चन। ये सी स्थानक मुੱਲ वाले। स्थानक मुੱਲ मैं तुहानूं पॉइंट वाला भी कढ़ना दस दिता। ते अगे देखो 37 27 37 26 36 56 ते 57 इन्हां दे विच उहने बोलिया कि भाज संख्या किहड़ी है। एक मिनट चैक कर लेने आ, कोई मिसटेक लगती है, सारियां भाज ही बन रही वा। ठीक है, चैक कर लेने आपां कि किहड़ी उहने पुछया की आ। इस दे विच उहने पुछया अभाज कि इन्हां विचों अभाज संख्यावां किहड़ियां ने, आड़ा लगना मुरे। ठीक है, अभाज संख्यावां किहड़ियां ने। अभाज संख्यावां किहड़ियां हुंदियां जिहड़ियां सिर्फ आपदे ही पहाड़े च आउंदियां, किसी होर पहाड़े च नहीं आउंदियां। देखो इहदे विचों जिहड़ी अभाज संख्या वा ओह किहड़ी आ, 37 आ। मतलब 37 कला आपदे पहाड़े च ही आउंदा, बाकी सारियां संख्यावां किसी दूसरे दे पहाड़े दे विच आउंदियां ने। ठीक है जी, हाँ जी। तो तुसीं देख सकते हो 27 भी आउंदा, 9 तिया 27, 13 दूना 26, फिर अगे 9 चौका 36 हुंदे आ। ठीक है, इस तरह सारियां ही संख्यावां जिहड़ियां किसी होर पहाड़े दे विच आ रहीआं ने, तो इन्हां दे विचों भाज संख्या होगी 37। ऑप्शन नंबर बी तुहाडा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगे जेकर 5 लगातार संख्यावां, जेकर पहली संख्यावां 1 आ, दूजी 2 आ, तीजी 3 आ, चौथी 4 आ, 5 आ, मतलब पहली दे विच 1 ऐड हो रहा। मान लेनी पहली संख्या x आ, दूजी x + 1, तीजी मतलब ऐ बन रहा ना, x 1 1 + 2 फिर ही बनूगा, जे मैं 1 ऐड करूँगी 2। सेम तीजी संख्या की आ, x + 2 x + 3 x + 4, क्योंकि उन्हें 5 लगातार संख्यावां बोलिया। उन्हें बोलिया इन्हां दा जोड़, तो आपां जोड़ कर लैंदे इन्हां दा। जेकर इन्हां संख्यावां दा 5 लगातार संख्यावां मैं दस दिता किवें लैणियां। 5 संख्यावां लगातार किवें हो सकदियां, कोई भी हो सकदी है, 61 62 63 64 भी हो सकती है। ठीक है, सानू नहीं पता इत्थे किहड़ियां, इस करके मैं x लिया वा। जेकर मैं आपां दा इह हिंट लिया वा भी असीं मैं x + 1 x + 2 x + 3 क्यों लिया, क्योंकि जे मेरे कोल पहली संख्या 1 आ, दूजी 2 होगी, मतलब वो एक जे मैं पहली संख्या 60 आ, दूजी 61 होगी, मतलब एक ऐड करके बन रही है, तीजी 62 होगी, 2 ऐड करके बन रही है। इस तरह तुसीं भी सोच सकते हो। तो इन्हां सारियां दा जोड़ कितना दिता वा, 60 दिता। 1 2 3 4 5, 5 तो x आवा, तो x 5 वारी आ गया। बाकी देखो 4 3 7 7 ते 2 9 9 ते 1 10, तो इत्थे बन गया तुहाडे कोले 10। ये 10 इधर प्लस दा वा, इधर जाके तुसीं माइनस करोगे तो इत्थे बन गया तुहाडे कोले 50। ठीक है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके की होगा डिवाइड। 50 ते तुसीं 5 नूं डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 10। मतलब पहली संख्या 10 आ, दूजी 11, तीजी वो कोई भी पूछ सकता है, ये पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं कोई भी, तो तुहाडा राइट आंसर की हो गया भी पहली संख्या तुहाडी 10 आ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगे उन्हें बोलिया जेकर आयताकार पार्क का परिमाप, एक आयताकार पार्क का परिमाप पता करना। परिमाप का मतलब की हुंदा, सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो, सारियां भुजावां दा जोड़ कर दो। हुण पार्क आयताकार आ रही पाई। परिमाप का मतलब की हुंदा, इहदी बाउंड्री, मतलब असीं कोई तार दी वाड़ लगानी है तो बाउंड्री कितनी होगी। ठीक है, एक भुजा 9 आ तो दूसरी 11 मा, मतलब ये आमो सामने दी भुजावां बराबर होंदियां, मैं बराबर करती 11 11 22, 22 दे विच तुसीं 9 ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे 31, 31 दे विच 9 ऐड किया 40, जानी कि 40 तुहाडा परिमाप आ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये तुहाडा हो गया परिमाप। तो हाँ जी, इस तो अगला पार्ट आ जो असीं, इस तो अगले क्वेश्चन असीं PDF ते ही सॉल्व करांगे।